Good morning, everyone. My name is Udit Palsra, and I have also studied in the same school in which you are sitting right now. I hope all of you are comfortable in English, although I may use Hindi in between. सबसे पहले मैं सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे स्कूल में बुलाया और मुझे इस काबिल समझा, और चेयरमैन सर का भी स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा। मैंने स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन ली थी। उसके बाद मेरी लाइफ की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी। तो 10th क्लास तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर +1 में जाके आई चूज़ नॉन मेडिकल। Then I decided that I will join the Indian Armed Forces, especially the Indian Air Force, and become a fighter pilot. Although there was something else in the destiny, there was not Air Force, but I'm joining the army, but as an officer. Soon after completing my 12th class, जैसे ही मेरी 12th क्लास खत्म हुई, मैंने एग्जाम्स देना स्टार्ट कर दिए टू गेट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। सबसे पहले मैंने दिया एनडीए का एग्जाम। आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द एनडीए एग्जाम, दैट इज द नेशनल डिफेंस अकेडमी, विच इज द फर्स्ट एग्जाम आफ्टर द स्कूलिंग टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। मैंने वो ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द रिटन एग्जाम। आफ्टर दैट आई चोज टू गो टू द कॉलेज एंड आई स्टडीड BSc इन नॉन मेडिकल। आई completed my degree, एंड उसके बाद I got to know about the CDS exam, that is the Combined Defense Services exam. मैंने वो एग्जाम भी दिया। I failed it 2 times. In the first and second attempt, I failed the exam. I prepared hard. In the third and fourth, both the attempts, I qualified the exam. और जैसा कि सर ने अभी मेंशन किया, अजय कुमार, he was my junior and he was also a great human being. I know him personally and he is also a very good human being. तो उसने FCAT एग्जाम दिया था, that is the Air Force Common Admission Test. I will be telling you about the various entries and schemes through which you can join the defense forces. So I was telling about my journey. So I cleared the written exam. Then after written exam, there is a interview known as the Service Selection Board interview, which is not just like a normal interview. It is a 5 days interview. It takes total 5 days to complete the interview. In between the interview, there are various tasks, जैसे कि GTO, which is the ground task, a psychology task, an interview, and the board conference. These are the different tasks that are completed in those 5 days. I completed those tasks and got recommended in the 5th day. There was a total of 57 candidates. पहले दिन 57 candidates ने report किया to go through the interview process. But finally, only 7 of us were able to make through it. So it was my इसके बाद ही मेडिकल प्रोसेस, जिसमें मेडिकल्स में 8 से 10 दिन लगे कंप्लीट होने में। आफ्टर गेटिंग मेडिकली फिट, देयर कम्स द फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 48 है आउट ऑफ 156। Now in January, I will be joining the academy and undergo training for 1.5 years and become a lieutenant in the army. अभी मैं आपको बताना चाहूँगा वेरियस स्कीम्स के बारे में, जिसके थ्रू आप जो है डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया एनडीए एग्जाम, उसके लिए आपको नॉन मेडिकल चाहिए होता है क्लास +1 एंड +2 में, और उसके 2 एग्जाम्स होते हैं। फर्स्ट इज मैथ्स एंड दूसरा जनरल एबिलिटी, जिसमें इंग्लिश जीके मिक्स होता है। और द सेकंड एंट्री इज द टेक्निकल एंट्री स्कीम। ऑल द कैंडिडेट्स और ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 75% इन देयर क्लास 12th आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। आपको इसमें रिटन एंट्री मतलब रिटन एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा इंटरव्यू के लिए जाओगे। इफ यू आर सेलेक्टेड इन देयर, देन यू विल अंडरगो 4 years of training. They will complete your graduation in those 4 years, and also they will train you for 1 year to become a lieutenant in the army. That was after 12th. And one more important thing that I would like to tell you, that is the importance of NCC. NCC is very important for all those candidates, all those students who don't know about the importance of NCC. NCC is very important in the college. If you go to the college और अगर आपको मौका मिले कि NCC चूज करने का, तो प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप NCC चूज करें। किसी भी विंग में जाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, लेकिन NCC चूज करें। उसके बाद आती है ग्रेजुएशन एंट्रीज, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। तो फर्स्ट इज द CDS एग्जाम दैट आई हैव टोल्ड यू। उसमें 3 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का 2 घंटे का, इंग्लिश का 2 घंटे का, और जनरल नॉलेज 2 घंटे का। तीनों पेपर एक ही दिन में कंडक्ट किए जाते हैं, और उनमें इन बिटवीन 1-1 घंटे का ब्रेक रहता है। उसके बाद इंटरव्यू है, और उसके बाद मेडिकल। नेक्स्ट इज द FCAT एग्जाम, दैट इज एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट।
उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 25 करके, इंग्लिश, मैथ्स, जीके एंड रीजनिंग। उसके बाद भी सेम प्रोसेस, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल। और एनसीसी, अब मैं आपको एनसीसी की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। एनसीसी में डायरेक्ट एंट्री होती है, एनसीसी स्पेशल एंट्री। इसके थ्रू अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, जो कि आपको ग्रेजुएशन में मिलेगा फाइनल डिग्री में, तो आप उसके थ्रू डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाओगे और उसके लिए सीट्स अलग से एलोकेटेड होंगी। सीडीएस रिटन एग्जाम में भी 10% सीट्स होंगी एनसीसी के लिए, और एफकैट में भी 10% सीट्स होंगी एनसीसी के लिए। तो ये सारी एंट्रीज थी। इसके बाद भी अलग अलग टेक्निकल एंट्रीज रहती हैं। बीटेक वालों के लिए टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है, और लॉ वालों के लिए लॉ एंट्रीज हैं, टीजीसी, अदर एंट्रीज। तो ये सारी एंट्रीज हैं। नाउ आई विल टेल यू अ स्टोरी दैट जब मैं इंटरव्यू देने गया था, मेरी इंटरव्यू हुई थी इलाहाबाद में, विच इज नोन एज प्रयागराज नाउ। तो वहाँ पे एनडीए वालों की भी इंटरव्यूज चल रही थी। देन आई मेट अ बॉय देयर हु वाज जस्ट 16 years old. His name was Tushar. He was just 16 years old and he cleared NDA exam. Not that he cleared the NDA exam, but उसने इंटरव्यू भी क्लियर की और उसका आज मेरिट में नाम है, एनडीए की मेरिट में उसका नाम है, मेरिट लिस्ट में। तो अगर 16 साल का तुषार कर सकता है, तो आप लोग भी कर सकते हो। क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने एरिया में किसी का सुना हुआ कि किसी का एनडीए एग्जाम क्लियर हुआ है। हम ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। क्लास +1 में जो है उनके लिए स्पेशली ज़्यादा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि क्लास +1 और +2 का ही सिलेबस रहता है मैथ्स में, और मैथ्स एग्जाम मेन होता है। जो क्लास 12th में है वो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें मीनवाइल। और अगर कोई ड्रॉप करने की सोच रहा है तो ड्रॉप भी कर सकता है टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम। So that was all about the exams that I've told you. Now I would like again to thank the teachers of this school who gave me opportunity to come here and present myself. And thank you and all the best for your future.